Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code. So, in the present video, we will discuss the last part of chapter Appeal. So, in this particular video, we will discuss section 391 to section 394. So, previous section 372 to 390 we have discussed in the previous 5 parts. You can watch those videos from my YouTube channel. You can select the playlist of Criminal Procedure Code where you will get all the provision. So let us proceed towards our topic. Appellate court may take further evidence or direct it to be taken. Section 391 deals with while dealing appeal. जब कभी भी appellate court appeal को deal कर रहा है, the appellate court, if it thinks additional evidence to be necessary, shall record its reason and may either take such evidence itself or direct it to be taken by a magistrate, or when the appellate court is a high court, by a court of session or a magistrate. So, suppose while entertaining an appeal, the appellate court, if feels that certain evidence must be टेकन कि कुछ एडिशनल एविडेंस लेना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल जो लोअर कोर्ट ने एविडेंस लिया था वो काफी नहीं है, कुछ एडिशनल एविडेंस लेना जरूरी है. तो उस सिचुएशन में अगर ऐसा अपीलेट कोर्ट को लगता है तो अपीलेट कोर्ट खुद भी वो एविडेंस को, फॉर एग्जाम्पल विटनेस को समन्स भेज सकता है, उनको बुलाकर उनका एग्जामिनेशन कर सकता है, उनका एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है, या लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि एडिशनली ये 2 एविडेंस को भी आप रिकॉर्ड करो और मुझे रिकॉर्ड सबमिट करो. फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट अगर अपील सुन रहा है तो सेशन कोर्ट को ऑर्डर करेगा एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, और अगर सेशन कोर्ट अपील सुन रहा है तो लोअर कोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए बोल सकता है. तो यहां पर अपीलेट कोर्ट का पावर है. अगर अपीलेट कोर्ट को लगा कि 12 विटनेस में से सिर्फ 10 का एग्जामिनेशन हुआ, 2 का नहीं हुआ, ये 2 का होना चाहिए, तो अपीलेट कोर्ट वो 2 का एविडेंस ले सकता है, 2 का एग्जामिनेशन कर सकता है, खुद अपीलेट कोर्ट कर सकता है या लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है. When the additional evidence is taken by the court of session or the magistrate, it or he shall certify such evidence to the appellate court, and such court shall thereupon proceed to dispose of the appeal. Suppose if the additional evidence is taken by the session court or lower court, then under such a circumstances such session court or lower court shall certify such evidence to the appellate court. कि एक बार लोअर कोर्ट ने अगर एविडेंस रिकॉर्ड किया, एडिशनल एविडेंस का एग्जामिनेशन किया, वो सर्टिफाई करेगा कि आई हैव एग्जामाइंड दीज सो एंड सो एविडेंसेस, और उनका एग्जामिनेशन का जो भी रिकॉर्ड है वो अपीलेट कोर्ट को प्रोसीड करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपीलेट कोर्ट विल प्रोसीड. तो अपीलेट कोर्ट आगे प्रोसीडिंग करेगा अपील में. सो अगर अपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, तो लोअर कोर्ट एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद सर्टिफाई करेगा कि मैंने ये एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड किया, और वो हैंडओवर करेगा अपीलेट कोर्ट को, और अपीलेट कोर्ट अकॉर्डिंगली अपील को प्रोसीड करेगा. सो द अक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल हैव द राइट टू बी प्रेजेंट व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन. तो जब एडिशनल एविडेंस लिया जाएगा, व्हेनेवर द एडिशनल एविडेंस इज टेकन, देन द अपॉर्चुनिटी shall be provided to the accused or his pleader to remain present. उनको प्रेजेंट रहने की उनको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करने की अक्यूज्ड को. सो दैट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 391. Now section 392, procedure where judges of court of appeal are equally divided. Section 392 deals with that particular provision. So when an appeal is heard by a high court before a bench of judges and they are divided in opinion, the appeal with their opinion shall be laid before another judge of that court, and that judge after such hearing as he thinks fit shall deliver his opinion, and the judgment or order shall follow that particular opinion. Suppose if any appeal is heard by a bench of judges, and if the opinion of judges is equally divided, under such a circumstances the
that particular matter will be led to another judge of that particular court for his opinion, and whatever the opinion formed by that particular judge, according to his opinion the matter will be decided. For example, कि अगर एक कोई अपील 4 जजेस का बेंच अगर सुन रहा है फॉर एग्जांपल, और अपील सुनने के बाद दो जजों का ओपिनियन अलग अलग आ गया, इक्वली डिवाइड हो गया ओपिनियन. फॉर एग्जांपल 2 जज कह रहे हैं कि एक्विटल होना चाहिए, 2 जज बोल रहे हैं कन्विक्शन होना चाहिए, इक्वली डिवाइड हो गया दोनों का. उस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि 4 जजेस का बेंच था, अगर 3 एक तरफ होते, एक तरफ होता तो प्रॉब्लम सॉल्व होता. यहां पर 2 हो गए, तो अब इक्वली डिवाइडेड हो गया ओपिनियन. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो ओपिनियन है चारों का, ये सब किसी और एक जज के पास भेजा जाएगा कि आप इसमें आपका कहना क्या है. तो वो जज जिसको ओपिनियन के लिए रेफर किया गया है, वो जैसा उसको चाहिए, जो चीजें वो देखना चाहे वो देख सकता है, उसके बाद वो अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है. अब जब वो अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, एक तो एक्विटल का फॉर्म करेगा या तो कन्विक्शन का फॉर्म करेगा. तो एक्विटल का किया तो अक्यूज एक्विटल हो जाएगा, कन्विक्शन का किया तो कन्विक्शन हो जाएगा. सो दैट इज द प्रोविजन under section 392. When the opinion of judge is equally divided, under such circumstances the same matter is referred for the opinion of another judge, and whatever the opinion formed by that particular judge, accordingly the judgment will be passed. Provided that if one of the judges constituting the bench or where the appeal is laid before another judge under this section, that judge so requires, the appeal shall be reheard and decided by a larger bench of judges. तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा जज जिसने वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, उसको अगर वो मैटर रेफर होता है या और कोई जज को मैटर रेफर करते हैं, जब ओपिनियन इक्वली डिवाइड हुआ, उस सिचुएशन में अगर किसी और मैजिस्ट्रेट को ओपिनियन के लिए मैटर रेफर किया जा रहा है, तो वो जज वो मैटर को, वो अपील को दोबारा से सुन सकता है और सुन के बाद में वो डिसाइड कर सकता है, उसका ओपिनियन फॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट सेक्शन इज फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर ऑन अपील. सेक्शन 393. सो जजमेंट्स एंड ऑर्डर पास्ड बाय एन अपीलेट कोर्ट अपॉन एन अपील शैल बी फाइनल. तो जब कभी भी अपीलेट कोर्ट अपील में अपना जजमेंट पास करेगा, ऑर्डर पास करेगा, दैट विल बी अ फाइनल, एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 377, सेक्शन 378 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 384 एंड चैप्टर 30. चैप्टर 30 डील्स विद द रेफरेंस एंड रिवीजन. तो 378 एंड 377 में हमने देखा कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल. 378 में देखा अपील अगेंस्ट द ऑर्डर इन विच द पनिशमेंट इज नॉट अ एडिक्वेट वन. पनिशमेंट एडिक्वेट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑर्डर दे सकता है, वो अपील प्रीफर करेगा. एक्विटल अगर होता है अक्यूज्ड को, तो उसके अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑर्डर देगा अपील प्रीफर करने के लिए, तो अपील की जाएगी. तो अगर 377, 388 और 384 या चैप्टर 30 में अगर अपील नहीं है तो वो अपील का ऑर्डर फाइनल रहेगा. अगर इन चैप्टर में, इन सेक्शन में अपील रही तो वो फाइनल नहीं होगा. नाउ सेक्शन 394. Every appeal under section 377 or section 378 shall finally abate on the death of accused. तो क्या होगा कि सेक्शन 394 लास्ट सेक्शन डील्स विद अबेटमेंट ऑफ अपील्स. So every appeal under section 377 or section 378 shall finally abate on the death of an accused person. Suppose if the appeal is preferred against the order of acquittal under section 377, and if the appeal is preferred against the order of lower court in which the lower court impose a sentence which is not an adequate one, तो अगर सजा पुरेसी नहीं है तो उसके अगेंस्ट में अपील होंगी सेक्शन 378 में, और अगर एक्विटल के अगेंस्ट में अपील होंगी सेक्शन 377 में. दोनों केसेस में अगर अपील होती है, क्योंकि अक्यूज्ड के अगेंस्ट में अपील हो रही है, और अपील हुई और अपील के दौरान अगर अक्यूज्ड की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, द अपील शैल बी अबेटेड. वो अपील वहीं पर खत्म हो जाएगी, है ना. अबेटमेंट ऑफ अपील, अक्यूज्ड की डेथ हो गई, अपील वहीं पर डिस्पोज, खत्म. Every other appeal under this chapter except an appeal from a sentence of fine shall finally abate on the death of an appellant.
तो अगर जो अपेलेंट अपील कर रहा है उसकी डेथ के बाद अपील वहीं पर डिस्पोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ फाइन। कि अगर सेंटेंस ऑफ फाइन की अपील है तो वो अपेलेंट के डेथ के बाद भी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि फाइन ऐसी चीज है कि मॉनिटरी है कि अगर वो अपेलेंट की प्रॉपर्टी उसके बाद अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव को जाती है तो फाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की उसके रिप्रेजेंटेटिव की हो सकती है, इसलिए अपील अबेट नहीं होगी। अदरवाइज अपेलेंट की डेथ हो गई तो अपील भी डिस्पोज वहीं पर हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपील इज अगेंस्ट अ कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर अपील काय के अगेंस्ट में, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन के अगेंस्ट में, या डेथ है या इम्प्रिजनमेंट है और कोई, एंड द अपेलेंट डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, और अपेलेंट की डेथ हो जाती है कब? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील, अभी अपील पेंडिंग है, एंड any of his near relatives may within 30 days of the death of appellant apply to the appellate court for leave to continue the appeal, and if leave is granted the appeal shall not be abate. So under such a circumstances, suppose if the appeal is preferred against the order of conviction, against a conviction and sentence of death or of imprisonment, and the appellant dies, और appellant की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कन्विक्शन के अगेंस्ट में अपील है और अगर अपेलेंट की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, वो पेंडेंसी के दौरान, अपील के दौरान, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव में अप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अपेलेंट, के उसकी डेथ के 30 दिन के अंदर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपेलेट कोर्ट के पास अप्लाई कर सकते हैं कि वी वांट टू कंटिन्यू एन अपील, एंड इफ द लीव इज ग्रांटेड बाय अपेलेट कोर्ट द अपील शैल नॉट अबेट, अपील अबेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कन्विक्शन का ऑर्डर पास हुआ, उसने अपील किया, अपील के दौरान उसकी डेथ हो गई। अब जैसे ही उसकी डेथ हो गई, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपेलेट कोर्ट के पास एप्लीकेशन करेंगे कि हमको ये अपील कंटिन्यू करना है, हमको परमिशन दी जाए, और अगर वो अपेलेट कोर्ट परमिशन देता है तो अपील अबेट नहीं होगी, अपील विल कंटिन्यू, अपील कंटिन्यू चलेगी। So that is the provision of abatement of appeal under section 394. So these are the provision relating to an appeal. So here we conclude the topic of appeal. In the next lecture we will discuss the reference, section 395 and 396. So I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.